Bharat Charo Akshubode. Yes. Not accepted. Yes. I have contacted this here. Right. Many जो main switch नहीं इनको सुमैया जी को उनको आना चाहिए। हाँ ठीक है, वो कोई नहीं, आपके पास तो प्रेसिडेंट बनाया जाए। My pranams to Pujya Nagaraj Babaji and a very good afternoon to all the dignitaries who are present here, heads of the institutions and dear faculty members. It is my pride, privilege and also a stroke of good luck that I am given this responsibility to say a few words about the syllabus of Jeevan Vidya which has to be introduced in various institutions. First and foremost, I cordially and warmly extend a very warm welcome to everyone present here. And yes, sir. And I have an immense pleasure to welcome warmly and cordially Pujya Nagaraj Babaji, who is a master builder, truly a visionary architect of a unique philosophical system, which has been given the name by him. Jeevan Vidya Madhyasth Darshan. His love, compassion, consideration and care for Sumaya Vidyavihar that has acted as a huge magnet for him, and Puj Babaji is therefore here amidst us since 19th May up to 24th May. Right in the beginning, I would like to make a brief presentation about what has been done in framing the syllabus for Jeevan Vidya for various streams, that is science, commerce, arts, and also some precedences there with regard to the teaching of Jeevan Vidya in engineering institutions. Right from 2006, there were 3 to 4 meetings which were held in the campus, and various members from various institutions like A.J. Sumaya College of Arts and Commerce, then of B.Ed College, of S.K. Degree College of Arts, Commerce and Science, Science and Commerce College, and other institutions. They have participated in the meetings, and the syllabus which was framed during the year finally 2008, and that was basically to be incorporated in the university system for the students of arts, science and commerce. There is called a paper which is foundation paper 1, which students opt for in the first year, and there is a paper 2 on foundation course which the students of second year BSc, BCom and arts they offer. So this was contemplated at that particular point of time that this will be really speaking rational to introduce Jeevan Vidya module into these 2 papers, foundation course paper 1 and foundation course paper 2. Then we had subsequently we had a meeting on 18th May, and also before that we have on 27th of April. These 2 meetings basically they were chaired by Dr. Srimati Neelubai Madam, and who is the driver for the implementation of Jeevan Vidya philosophy into the educational institution. Some of the decisions, the deliberations, after due deliberations, the decision which was made in these meetings, I would like to indicate one by one. The first and foremost is the proposal of add-on certificate course to be sent to University of Mumbai, and it has to be discussed in the AC meeting. You are not Babaji, submitting the agenda to us? sir, University people, we should more Yes. professional, Right. more organized. yeah. I'm shocked at the quality of this meeting. Continue. Yes, sir. So this course, add-on course, बाबाजी which जो यूनिवर्सिटी में पास करना है एकेडमिक काउंसिल में, तो उसके लिए प्रपोजल बनाकर भेजा गया है, और वो प्रपोजल एकेडमिक काउंसिल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में डिस्कस होगा, और डिस्कस होने के बाद में जब वो पारित हो जाएगा तो
उस कोर्स को हम लोग सुमय विद्यालय इंस्टीट्यूशंस में आपको बाबा को देना पड़ेगा क्या कोर्स है। Yes. बाबा को A2Z कोर्स Yes. दिया नहीं है हमें। yes, sir, that's syllabus copy will get When? After the meeting? Or you continue, get somebody immediately? Would you have with you? मैं जिम्मेवार को पहचानने की वजह जी। से इस सेमिनार का जो है ना मीटिंग का जिम्मेदार को ये बात तय हो जाए कम से अभी वर्मा जी जिम्मेदार को कन्विंस करना हमारा काम। really Parvati Venkatesh was supposed to be Jimmewar, Ranganathan should have been Jimmewar, and in the absence of both, now Dr. Verma is Jimmewar. I am recording this. यहाँ की नायक है विद्या विहार के मेन रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सब मेंबर्स हैं, अभी मिक्स हो गए हैं सब यहाँ। I think they are all members, isn't it? Yeah. Sadhan Bhai is not member and Sriram is not member. Yeah. Everybody else is member. You are right. एस.के. भवानी, प्रोफेसर पार्वती वेंकटेश, प्रोफेसर कला आचार्य डॉक्टर सुधा व्यास, डॉक्टर जे.के. वर्मा, प्रोफेसर मनाली लोंडे, डॉक्टर सुरेंद्र पाठक, डॉक्टर रंजू नायक, Member to प्रोफेसर जी there. के. वेंकटरमणी, प्रोफेसर एस.एस. सहारे, प्रोफेसर के. शंकर नारायणन, डॉक्टर विजय जोशी, प्रोफेसर शर्मिला वीरकर, प्रोफेसर प्रशांत जैन और श्रीमती सुनीता पाठक। आज की मीटिंग में इतने लोग इसके मेंबर थे। They are all at the back, nobody in the front. कितना संख्या में? इसमें से डॉक्टर एस.के. भवानी, प्रोफेसर पार्वती वेंकटेश जो हैं, डॉक्टर सुधा व्यास और प्रोफेसर मनाली लोंडे और प्रोफेसर के. वेंकटरमणी, ये लोग यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणों से। उसमें एक दो टीचर बाहर गए हुए हैं किसी दूसरी मीटिंग में। कितना यहाँ उपस्थित है? 9 लोग उपस्थित। 9 लोग आमंत्रित के पहले से क्या निश्चित था? 14 लोग। 14 लोग, 9 लोग उपस्थित। एक चलो। इसके अलावा डॉक्टर जे.के. वर्मा जो हैं इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने के समन्वयक हैं और मुख्य रूप से कन्वेनर हैं। हाँ। जी, मुख्य रूप से बाबा ये जो मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रपोज करने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उसमें हाँ। प्रोफेसर पार्वती वेंकटेश हैं। हाँ। उनकी कहीं ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय में मीटिंग होने के कारण वो नहीं आ आए। पाए। दूसरे जो व्यक्ति हैं प्रोफेसर एस.एस. सहारे, हाँ। जो आपसे कल मिले थे हाँ। भोजन के समय में। हाँ। जी हाँ। उन्होंने फ़ोन करके ऐसा मुझे बताया है डॉक्टर वर्मा ने कि उन्होंने फ़ोन किया है कि वो 4 बजे तक बाबा जी 4 बजे तक आने का। वो असल में यूनिवर्सिटी में जीवन विद्या का मॉड्यूल जो बना रहे हैं वो इसी की मीटिंग 27 मई को है, अगले हफ्ते में। तो उसके लिए वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं, तो जब तक वो काम खत्म नहीं होगा वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। जैसे ही खत्म हो गया वो मीटिंग में आ जाएंगे। ऐसा उनसे मेरी बात हुई है 1:30 बजे आज फिर से हुई थी। प्रोफेसर एस.एस. सहारे हैं श्री रंगनाथन जी के पास अपना एक SMS भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो प्रयास कर रहे थे उसमें कुछ उनको आंशिक सफलता मिल गई। उनको आंशिक सफलता मिल गई। सर Ranganathan, just a minute, let Ranganathan answer. This is the SMS which has come from Dr. Sahare, respected sir. As per your direction, spoke to Dr. Pathak, discussed the Jeevan Vidya syllabus, trying hard to introduce it in engineering syllabus, in spite of strong opposition from others, but I will try my level best to implement it and get it done, as it was done for our permanent affiliation. Please bless me to get success. So he is now in the university, he will see that it is included in the agenda of the next meeting, which is scheduled to be held on the 29th. It is on the agenda. I am very unhappy now with the way things are. We have taken a decision immediately to give them a table. Engineering college, polytechnic, we are introducing this July. Whether we have government university approval or not. So that too, there are, I think I will clarify the position. जीवन विद्या के अमल के बारे में 3 प्रकार की शक्यता महसूस हुई। पहली शक्यता ये है कि आपने हर आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेजेस में
पहली और दूसरी साल में फाउंडेशन कोर्स करके एक प्रोग्राम है। ये तो अपने सिलेबस में प्रोग्राम है, ये फाउंडेशन कोर्स के नाम से यूनिवर्सिटी ने संबोधन किया है। इस कोर्स के मॉड्यूल में अनिवार्य तौर पर जीवन विद्या का समाविष्ट करना और अनिवार्य तौर पर जीवन विद्या को समाविष्ट करना, इस प्रकार की सिलेबस बना के यूनिवर्सिटी को पेश की गई है। अब बम्बई यूनिवर्सिटी के प्रक्रिया जो है वो थोड़ा क्लिष्ट और समय लेने वाला है। पहले कमेटी के सामने जाती है और कमेटी के सामने के बाद जाने ओके आई थॉट यू आर ट्राइंग टू आस्क मी टू ठीक है ठीक है ठीक है आई थिंक आई डोंट सो उसमें उन्होंने अनिवार्य तौर पर फाउंडेशन कोर्स में जीवन विज्ञान का प्रोग्राम सिखाया जाए, इसके लिए सिलेबस बनाई गई थी। सिलेबस बनाने के बाद पिछले 2 महीने हम लगातार इससे पीछे पड़े हैं। फिर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमें जो सिलेबस दी जाती है उसके एक ढांचा है, उस ढांचा के अनुसार बनानी चाहिए और कमेटी की 3-4 मीटिंग हुई, फिर उस ढांचे के अनुसार सिलेबस बना के यूनिवर्सिटी को पेश की गई है। अब उसमें 2-3 कमेटी के सामने जाती है, फिर एकेडमिक काउंसिल के सामने जाके पहले उसका हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस कमेटी रहती है, उसके सामने जाती है, फिर उसमें एकेडमिक काउंसिल के सामने जाते हैं और आमतौर पे इस कमेटी की मीटिंग साल में 3-4 बार होते हैं, 3-3 महीने के बाद। तो उनका अंदाज ऐसा है कि ये आने वाले कमेटी के सामने पेश की जाएगी ताकि यूनिवर्सिटी से अप्रूवल मिला के वो इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। उसका ऐसा अंदाज कि 3-4 महीने में यानी अगस्त सितंबर तक करने का वो पूरी तौर पर प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी जो लेवल है ये सर्टिफिकेट कोर्स है, यानी मुंबई विद्यापीठ में यूजीसी के जो सर्वसाधारण तत्व है, तत्व के अनुसार जो बीए, बीकॉम, बीएससी प्रोग्राम्स रहती है उसमें विद्यार्थियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ एड ऑन कोर्सेज रहते हैं। जैसे अगर किसी ने कॉमर्स किया उसके साथ अकाउंटेंसी के एक मॉड्यूल वो स्वेच्छा रूप से करते हैं और उसके लिए उनको सर्टिफिकेट मिलती है। ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स भी जीवन विद्या का वो उन्होंने प्रस्तावित किया है और उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट कोर्स हम यूनिवर्सिटी का अप्रूवल सिवाय हम खुद स्वयं शुरू कर सकते हैं और वो शुरू करने के बाद कालांतर में अप्रूवल मिलेगा, उसके सिवाय भी हम चला सकते हैं। इसलिए उनका सर्टिफिकेट कोर्स का भी उन्होंने सिलेबस बनाया है। पाठक साहब को उन्होंने मार्गदर्शन करके कैसा बनाना है, क्या क्या इम्प्रूव करना है, सब पूरा कंप्लीट किया है। उन्होंने पिछले 3-4 दिन पहले मीटिंग में वो फाइनलाइज किया। अब वो सर्टिफिकेट कोर्स अब जब कॉलेजेस शुरू होगी मई जून में जो शुरू होगी, शुरू होते होते वो सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर सकते हैं। और तीसरी जो प्रोग्राम है जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इनके नियंत्रण के नीचे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक, उन्होंने इसके पहले ही ये प्रोग्राम AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मंजूर किया है और मंजूर किया हुआ जो प्रोग्राम है उसी के अमल छत्तीसगढ़ राज्य में अभी हो रही है। अब वो ढांचा लेके उसमें थोड़ा विस्तृत करके सुधारना करके इन्होंने नया ढांचा बनाया है। वो ढांचा उन्होंने अपने जो डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डॉक्टर सहारे है, इन्होंने बनाया है। हाँ? किसी ने ढांचा बनाया है। So that इन्होंने मतलब हुई नहीं इन्होंने। sir, there is a syllabus committee for Jeevan Vidya which consists of about 9 or 10 members. That Is it Vidyavir committee? Vidyavir committee. Yes, Yes, sir. I graduated No. from university. I thought earlier okay. I don't understood you. So the Let me understand. okay, the syllabus committee we had constituted. You might recollect, sir, about 1 month ago we had discussed when you said that there will be a syllabus committee. This committee will meet. That is actually Verma is the chief coordinator. The committee with you already. हाँ जी. Which guys are not present. Sorry. The 14 members, 9 are present, 5 are not present. Yeah. So the syllabus committee had prepared this. Sorry, मैं ये कह रहा था कि वो अपने जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अब उन्होंने AICTE ने तो इसको मंजूरी दी है, इसलिए उसका आधार लेके सिलेबस कमेटी ने एक सिलेबस बनाई है। उसमें छत्तीसगढ़ में IIIT में जो सिलेबस है उनका सबका अभ्यास करके उन्होंने डिटेल बनाई है। अब वो सिलेबस सहारे साहब ने इनके पास लेके गए यूनिवर्सिटी के बाद और उसको सिर्फ यूनिवर्सिटी की औपचारिक मान्यता है। अब 29 तारीख को यूनिवर्सिटी की कमेटी की मीटिंग है, उनका ये प्रयास है कि 29 मई में मान्य की जाएगा, फिर अगले आने वाले जून से
यानी आने वाले जो नया सेशन शुरू हुआ जून जुलाई में, उससे ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी शुरू की जाएगी। और इस पे जो कुछ भी उन्होंने सिलेबस बनाए हैं उस पर आपका मार्गदर्शन मिले तो उसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर है जो आपने कहा, क्लियर है। कितना पॉइंट है? 3 पॉइंट है इसमें। हाँ? 3 पॉइंट है। 30 पर 3। ठीक 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 पर No, I want to, You can take the syllabus, sir, by submissions we can take the, briefly they can present the syllabus, which has been framed and the outline, Baba can guide us. ये मैसेज जो भेजा, ये जो मैसेज भेजा अभी पढ़ा आपने, हाँ जी। उनमें वो उनका अपेक्षा क्या रहेगी? उनका अपेक्षा ऐसा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी का अगले जो मीटिंग 29 मई है, उस मीटिंग में उनकी मंजूरी मिलेगी ताकि ये अगला एकेडमिक सेशन से अमल कर सकते हैं। 29 मई को एक सप्ताह के बाद इसकी मंजूरी मिल जाना चाहिए, ये संभावना है। ठीक है, बढ़िया, ऐसा आशावादी है। हाँ जी। ठीक। सर इसमें मैं एक निवेदन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ द वे थिंग्स हैव हैपन। नहीं, इट्स ओके। I made it a very professional meeting here. I made a committee of 14. Unfortunately, Ranganathan has sent papers to university, but I have no papers on So, it. I'm sorry, sir, I have not. Wait, don't interrupt me. I didn't interrupt you. I told you I'm a little disturbed the way things have been presented. Baba, there are two aspects. One is the AICT has approved the thing. So I don't require Bombay University approval. Of course, Bombay University has a right to give approval and it will be done. But today nothing prevents me from introducing this course in my engineering 2 colleges, my polytechnic, and even SIMSA, Management Institute. So, whether Bombay University gives a permission or not, I directed. Actually, if Ranganathan has not understood it, let him write things down and today's direction. They are being introduced next July. As course. But whether university approves on 29th May or not, that is very crystal clear. And Baba, that covers the AICT institution. But we want to cover the entire university syllabus and curriculum. For university, there is what is called a foundation course. The foundation course also you cannot amend or replace. That's why Parvati Venkatesh should be here. She said her term was over, the chairman of previous committee. Next meeting, next committee will be 3 years later. We can't wait for 3 years. We want our curriculum to start university this year itself. So whilst emphasis has been given on and SARE for engineering college, my emphasis is what happens to the university program for rest of the university. All institutes. Arts, Science, Commerce, for which the Parvati said that we have over 25 people in university. She is well placed there, so I am surprised why she is absent today. I will deal with it later. But she said easiest to start this year would be an add-on course to the foundation course. The foundation course is already there, and we want to put an add-on course. And that can be put through very fast. And if the add-on course is done, then it will be ruled for entire Bombay University. All 450 colleges are affiliated. So to me, my more emphasis was this aspect. So now I explain to you, one is technical institutions which are AICT approval, have automatically will start, will not wait, but will apply for Bombay University approval. That's point number 1. Point number 2, our urgency today is because next July, the add-on course. So these are the 2 things are there, the 2 different aspects of the subject. May I want Joshi to comment on it? उसका जो अनुभव है, उस अनुभव के हिसाब से हम मुंबई विद्यापीठ को अप्रोच करें और उसकी मान्यता लें। पहले हम करके दिखाएं और फिर बताएं कि साहब इसको मान्यता दीजिए। ये सबसे आसान तरीका
एड ऑन कोर्स में 3 लेवल होते हैं। पहली लेवल सर्टिफिकेट कोर्स की होती है, जिसका ढांचा बन गया है, आपके पास प्रमाण के रूप में एक सर्टिफिकेट कोर्स का ढांचा रखा गया है। प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट कोर्स होता है, उसके द्वितीय वर्ष में डिप्लोमा होता है और उसके बाद में एडिशनल डिप्लोमा होता है 3 साल के लिए। सो ये 3 साल का एक कोर्स बनता है, जिसका इवैल्यूएशन कुछ पेपर लिख के नहीं होता, वो इवैल्यूएशन अपने आप में अलग तरीके से हो सकता है और जिसमें केवल श्रेणी दी जाती है। 100 में से इतने गुण ऐसा न करके श्रेणी दी जाती है, जैसे A, B, C ऐसी श्रेणी दी जाती है सर्टिफिकेट कोर्स को। तो 2 चीज़ें तो हम तुरंत अगले साल से कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि AICTE अप्रूव जितने भी हमारे कोर्स हैं, जो हमारे AICTE अप्रूव संस्थाओं में चलाएं, एक बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि पहले जो कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स हमने बनवाया है, जो एड ऑन कोर्स की तरह है, जिसको हम यहाँ चलाएं FY प्रथम वर्ष में सर्टिफिकेट कोर्स के तौर पे, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट प्रथम वर्ष में करता है, जब वो SY द्वितीय वर्ष में जाता है, तो उसका एक अग्रिम सिलेबस वो करेगा, जिसको डिप्लोमा कहा गया है। और फिर एक प्रोफेशनल डिप्लोमा उसके और तृतीय वर्ष में पढ़ता है। जब तक वो ग्रेजुएट होता है, तब तक वो 3 कोर्सेस पार करेगा, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और स्पेशल डिप्लोमा। ये 3 कोर्सेस वो करेगा 3 साल में, और जिसमें मुंबई विद्यापीठ जो भी प्रक्रिया उसकी है वो चलती रहे, वो अपने स्पीड से चलती रहे, और हमारे सारे विद्वान जहां मुंबई विद्यापीठ के विभिन्न पदों पे बैठे हैं, उनको हमने कहा भी है कि जोर देके इसके लिए जहां जहां हमको अपना आवाज उठानी हो, उस संस्था में अपनी आवाज उठाएं और इसको पारित करें। तो वो एक हिस्सा चलता रहेगा विद्यापीठ का, लेकिन हम पहले शुरू करके दिखा दें कि यहाँ एड ऑन कोर्स चला है और अच्छी तरह से चला है, उसका प्रमाण बनाएं, और फिर यदि वो जाते हैं तो केवल अप्रूवल होता है विद्यापीठ का, जिसमें सारी प्रक्रिया नहीं होती। अभी दूसरा ये है कि जब भी आप किसी फाउंडेशन कोर्स के